congratulations, Ashish Bhaiya. You Thank are you. selected as IBPS PO in Bank of India. Yes. So deeply congratulations to you. My first question is that most of the aspirants thought that there is a very high competition in banking sector. So what's your opinion in point of view? The number of persons giving bank exams is 1/4 or 1/5 of the number appearing for SSC or railway exams, just because of the common public's understanding. Whereas you can see the number of posts that are available, clerk plus PO plus other SO officers, is 3 to 4 times the CGL. That means you have 16 times more probability of getting selected in bank exams than in SSC or railway. My second question is that in my mock test, I'm not getting a good score in my English. So how to increase score in my English subject? Currently, I think you have 2 years of time in your hand, and that is so much time that you could qualify and become a topper in SBIPO. That has the most top level English. You must focus on what sir give the notes, and especially the vocab that Narendra sir teaches. You must not miss his class, because the teaching style, the way he teach, is different from the commonplace. He just focuses on exam relevant content, no clutter, and that you will not believe how will your English increase in the coming time. My third question is that how many hours had you spent per day in your preparing days for studying? Beside coming for tuitions for nearly 3 hours a day, I spend 4 to 5 hours in my day studying, on 1 hour on maths, 1 hour on reasoning, or at least 2 subjects a day, and the test paper that BFC gives. Thank you. Congratulations to you for your selection in Thank IBPS you. PO. My question is, what is the mindset should be in the examination hall? Your mindset is based upon what you have done over the months. Like The mock test, you must focus on your computer. You must not listen to what other people say, because before giving exams, there is 15 minutes of time where candidates sit. You will see many candidates talking. Some may boast about their preparation, some may be underconfident and say, see, you must not listen to anyone. Whether if you are religious, you must chant some hymns, or otherwise you must be silent and be focused and be calm, because it is not the last exam that you are giving. And what kind of pressures you felt when you are tackling the questions in the examination hall while solving the problems of maths and reasoning? I would like to thank BSc because of the test paper it provided to me. Because in BSc, whenever I used to give test in 1 hour, I used to attempt only 60 to 65 questions. Out of it, I always scored 55. But when I gave the real paper, it was so much low in level to the test paper provided here. I attempted 82 questions, out of which I got 70 plus marks in my prelims examinations. So that made my confidence go up. In your preparation days, how did you tackle and able to command on each particular subject? See, you don't need to be a very meticulous student or be a very diligent. Regular work, because 8 months to 7 months or 6 months, you have to work regular for 4 to 5 hours or 6 hours and give to each subject, because each subject has its equal validation in pre or whether mains. And my last question is, what was your experience in the interview, in front of interview boards while questioning the answers? I gave 9 to 10 mock interviews before appearing in front of the real interview board. That made my confidence, I was so confident that I didn't feel I didn't get flabbergasted at that time. Because of the experience, I went there, I chat very freely with them. The question they asked, if I could answer, I answered. If I felt that I didn't know, I said sorry. Interview is a complete environment. You cannot learn it from books, you cannot learn it from online. You have to go there, you have to change your order, you have to change your fragrance, you have to change how you behave. Thank you. Congratulations. Thank आशीष you. भैया, मेरा पहला सवाल है कि जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं
मैथ्स का सेक्शन जो आता है उसमें सबसे आपका प्रेफरेंस क्या रहता है? आप किस अकॉर्डिंग से बनाते हो क्वेश्चन? जी, मैं एग्जाम्स को लेकर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एग्जाम्स। मैं खुद का SBI PO का एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले मैं इंग्लिश दिया, रीजनिंग दिया, फिर इंग्लिश दिया, फिर मैथ का सेक्शन चालू हुआ। क्या था कि कुछ सवाल जो मेरे लिमिटेड टाइम में नहीं बन रहे, हमको मालूम है ये सवाल बनेगा हमसे, उस चक्कर में मैं इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि 35 में से मैं 20 ही मैथ को देख पाया। क्या पता उन 15 में से हम 5 और को बना सकते थे बजाय इसके जहाँ टाइम बर्बाद किए। यही चीज को हम IBPS PO में अप्लाई किए। मैं निश्चय करके गया था कि हम आज भले 10 ही मैथ बना लेकिन हम 3500 क्वेश्चन देखेंगे। अगर नहीं होता है 15 सेकंड में ही आपको पता लग जाए कि मैथ तुरंत बनेगा या 4 मिनट लेगा। अगर आप 1 मिनट मैथ पे 4 मिनट देते तो आप सीधे लटक जाएंगे। और रीजनिंग में आपका प्रेफरेंस क्या रहता है देने के लिए? रीजनिंग में प्रेफरेंस देखिए, रीजनिंग और मैथ यदि आप न्यूबी हैं, नया बच्चा है, तो आप क्या कीजिए, रीजनिंग और मैथ में 10 नंबर का कंटेंट, मैथ में जो होता है एडिशन, अप्रोक्सीमेशन, इससे आपको 10 नंबर आ जाएगा। और रीजनिंग में भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन वाला, ये सब बना लीजिए। क्यों? 5 से 10 मिनट में ये आपको सीधे 10 नंबर दे देगा। उसके बाद जाइए पजल पे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप, मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने 2-3 पजल बनाया और उसको बनाते बनाते टाइम निकल गया। जी, और कुछ? और भैया जैसे जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए? मेरा भी ये पहला ही अटेम्प्ट था, तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट जो SBI PF किया था उसमें मैंने अपने ईगो प्रॉब्लम को देखा कि आपको ये नहीं सोच के जाना है। बहुत सारा चीज़ होगा जो आप टेस्ट पेपर में जानते होंगे, बनाते होंगे, लेकिन वो टाइम में नहीं हो रहा है। आपको वहाँ रियल और प्रैग्मेटिक होना चाहिए। आपको आपका दिमाग कि नहीं ये बन रहा है तो यही बनाएंगे और ये हम जानते हैं। वहाँ नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको दोबारा ट्राई किए या ये किए। आपको वहाँ सेंटर पे सबसे पहले काम रहना है, अपना मेंटल बैलेंस को खा पी के जाना है, मतलब बढ़िया से, और उसके बाद अटेम्प्ट करना है सारा जितना हो सके। किसी से आपको ईगो नहीं लड़ाना है। जैसे बहुत लड़के होते हैं जो बोलेंगे मैं 80 अटेम्प्ट करके आया 100 में, और हो सकता है उनका नहीं निकलता, और आपने 70 अटेम्प्ट किया और आपका 65 से ही आपका हो जाएगा। तो किसी से आपको कम्पीट नहीं करना है। Bhaiya, can you suggest me some tips on how to focus on my preparation? See, preparation is not in a day or in a month. Preparation is a long time progress. You have to gradually increase. When I go back to my initial years, because in 8 months I have prepared. 8 months ago when I used to give my mock test, I used to sometimes pass. And I have, in the first initial months, I never passed in any of those tests given here. I always used to score 7 to 8 in English, 12 in maths. Then I introspected myself, and then I started building my base with the help of books. You all have the BSc material that is provided here. You will see when outsiders provide those materials, those books are of this thickness, in centimeters. But BSc book is only 5 millimeter or half a centimeter. But I solved that book 2 times, and now you know how well I did in my maths and reasoning. So don't go to the book size. Believe. You have to believe in your teachers. When I came here, I submitted myself to Naren sir and Ravi sir. Whatever they said in terms of GK, whatever I asked them, because you cannot go mend your way into 4 ways. You ask something here, you prepare something here, sometimes online content, sometimes you study in your laptop. Go on one streak, whether, and be confident. It's preparation and is a long time process. It's not for one day. You will see after 6 months you cannot recall what you were when you see those changes. Today I cannot recall hardly what I was at that time, how I traveled from 16.5 number to 80 number. Thank you. Congratulations. Thank you. बोल रहे हैं मतलब एग्जाम सेंटर में इंग्लिश का मतलब कैसे ये करते हैं? किस एग्जाम में? SBI या FGDS? एग्जाम में इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका जो सर पढ़ाते हैं उससे बहुत रिलेवेंट मैच करता है। और जो आपका टेस्ट पेपर रहता है, टेस्ट पेपर से सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैच करता है तो वो इंग्लिश, और सबसे कम लेवल रहता है। यहाँ जो टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है उससे बहुत कम लेवल का आता है आपका SBI PO और IBPS PO। खासकर इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी है वोकैब। कभी कभी 10 वोकैब भी पूछा जाता है, कभी कभी, लेकिन 5 वोकैब आपका जरूर रहेगा। कुछ पैसेज में, कुछ डायरेक्ट,
उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी कुछ कुछ बैंक में आते हैं कि इस फ्रेज को आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको इंग्लिश के नोट्स जो नरेंद्र सर पढ़ाते हैं उसको आपको रेगुलर रिवाइज करना है। मैंने 2 बार इंग्लिश की कॉपी को रिवाइज किया, उसको फिर से लिखा, 100-200 एरर सर पढ़ाएं तो उसको मैंने बेस बनाया, उसको बार बार पढ़ा, तो उससे मुझे एक जनरल परसेप्शन हो गया कि क्या होता। और सर ने बताया था कि आप कुछ इंग्लिश नॉवेल, कुछ भी आपको जैसे इंग्लिश में बच्चा का पढ़ने का मन करता है तो आप थ्रू लेवल से कोई किताब हो गया वो सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि वोकैब बहुत ज़रूरी है ग्रामर के बाद आपका इंग्लिश में। कांग्रेचुलेशन आशीष। थैंक यू। हाँ, मेरा सवाल था कि ऑनलाइन टेस्ट या फिर ऑफलाइन टेस्ट जरूरी है एग्जाम के लिए? देखिए, ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट दोनों बहुत अलग है, दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, ऑनलाइन टेस्ट बहुत बच्चों को ये लगता है, वो आपको बहुत ही कंफर्ट देता है, एक जगह पे देता है, बहुत बच्चा आ नहीं सकता उसको। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट का एक प्रॉब्लम है, ओरिजिनल एग्जाम में आप पॉज नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद जब पहला बार एक बार ऑनलाइन टेस्ट अपीयर किया दोस्तों के कहने पे, तो मैंने आधा घंटा के बाद जब क्वेश्चन नहीं बनने लगा तो पॉज कर दिया। उसके बाद मैं कहीं घूम के आ गया, कुछ खा पी लिया, तब तक मूड चेंज हो जाता है, फिर वापस बैठा। वो आपको ओरिजिनल एग्जाम में नहीं होगा। जबकि यदि आप कहीं ऑफलाइन देने आते हैं तो भले आपको कंप्यूटर का फीलिंग नहीं मिले, लेकिन आपको वहाँ पर वो 1 घंटा का टाइम वही आपके टीचर्स मॉनिटर करते हैं, अगल बगल एग्जाम दे, तो वो एग्जाम का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और वो कंपटीशन का जो लाइव होता है, वो बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन टेस्ट के बाद अपने स्कोर देख लिए, जैसे कि मान लीजिए 200 में अगर उनको आ रहा है 110, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो उनको उनके सॉल्यूशंस। और ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज़्यादा फीचर्स हो जाने के कारण आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, आप सोचते हैं कि इसका तो रिजल्ट रिकॉर्ड हो गया, बाद में कर लेंगे, जबकि ऑफलाइन टेस्ट में ऐसा नहीं है। थैंक यू। अच्छा आशीष भैया, ये मैं पूछना चाह रहा था कि हम लोग को जब ट्यूशन ज्वाइन करना है तब ग्रेजुएशन के पहले हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए या ग्रेजुएशन करने के बाद ज्वाइन करना चाहिए? ग्रेजुएशन के साथ साथ ही, नहीं तो मिडिल ईयर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो दूसरे तरफ रुक कर लिया था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उन 2 साल में यदि आप यहाँ पे 50-60 नंबर तक ले आते हैं, मुझे तो जहाँ तक लगता है आप ग्रेजुएट होते के साथ आप पीओ बने। और मेंस का तैयारी प्री निकलने के बाद करना चाहिए या नहीं, फिर साथ साथ? आप बीएससी का मटेरियल देखे होंगे, उसमें जो क्वेश्चन रहता है पहला 20 से 30 क्वेश्चन सिंगल लाइनर लेकिन उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन लंबा लंबा रहता है। क्या बीएससी आपको अलग बुक दी प्री और मेंस के लिए? तो आपको साथ ही करना है। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर आप टेस्ट देना शुरू करते हैं तो पहला 1-2 महीना आप प्री दीजिए। जब प्री में आप देख रहे हैं कि आप टेस्ट में रेगुलर लगभग कट ऑफ ले आ रहे हैं या ऊपर ले आ रहे हैं, तब आप मेंस देना शुरू कीजिए, क्योंकि वो 1 घंटा से 3 घंटा शिफ्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे बहुत लोग है, टेस्ट होता है हम लोग का, जी। सैटरडे वाला टेस्ट में तो हम लोग का 1 घंटा में होता है, उसके अलावा जो टेस्ट होता है उसमें 1 घंटा से ज़्यादा हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो आपको अपने पे डिपेंड करता है। यदि आप देख रहे हैं कि आपका 1 घंटा में, मान लीजिए इस बार का जो पीओ का कट ऑफ था वो 50 था प्री में, यदि आप देख रहे हैं कि आपका 1 घंटा में यदि आपका 40-45 नंबर आ रहा है, तो आपको सारे टेस्ट 1 घंटा में ही देना चाहिए ताकि आपको प्रेशर बने। लेकिन यदि आप एकदम फ्रेशर है, अभी आप पढ़ाई करके सिलेबस खत्म करके शिफ्ट हुए, आप 1 घंटा में 20 नंबर ला रहे हैं, तो उसके लिए बीएससी 2 दिन देता है, जिसमें कि आप 3 घंटा 2 घंटा बैठ के अपना आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जब आप 20-30 टेस्ट देते हैं उसके बाद आप फ्रेंडलियर हो जाते हो सेक्शन, आपको पता है क्या, और उससे क्या होता है आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपको जल्दी करना है सेक्शन पास करने के लिए। तो जैसे 2 महीना आप टेस्ट दे दिए, उसके बाद आप टाइमली टेस्ट दीजिए, मेरा तो यही कहना है। Most of the parents thought that SSC and banking examinations are same. So what's your opinion in this point of view? Your question seems very familiar. Even I thought when I was starting, but bank exams are more costlier. You can give SSC exam in just 100 rupees, where for bank exam you will have to spend 1,000 and 1,500 rupees. That is why most candidates don't give bank exams. And bank exams has a lesser content in terms of current affairs. Whereas SSC has a vast syllabus in terms of maths, in terms of GK, in terms of GS, it is sometimes equivalent to JPSC, BPSC or UPSC, because you will see SSC students covering ancient, modern, medieval history. Who covers this? One who is appearing for JPSC, BPSC, where you will never see a banking aspirant cover these topics. Just you need to cover some current affairs and a little about the financial sector, about its interest rates, policy, new monetary policies. Just so it's 1/10 of the GS sections. It 1/10.
of the in SSC and other exams. जीएस हमें कब से मतलब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए जीएस की? जीएस आपको लंबा समय तक याद रखना है, मतलब लंबा समय पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए ये आप अचानक से, जैसे मेरा इंटरव्यू निकल गया था, उसके 6 महीना पहले ही सर हमको शुरू से सजेस्ट कर दिए थे कि आपको 2-3 बुक ये है, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस का पढ़ना है। और उस बीच हम धीरे धीरे अपना पढ़ते रहे, तो 15 दिन में हम रिवाइज कर ले। यदि इंटरव्यू निकलने के बाद हम वो किताब खरीदते तो 15 दिन में कुछ नहीं पढ़ पाते डर के मारे। तो आप क्या कीजिए, वो सब किताब ले लीजिए और जब टाइम मिले, अभी आपके पास 6 महीना टाइम है, एक चैप्टर 5 दिन 6 दिन में आराम से पढ़िए। कहीं डाउट हो सर से पूछिए, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत डाउट होगा आपको। तो उससे क्या होगा, अभी आप हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं, अगर याद नहीं भी हुआ तो जब आपका इंटरव्यू या कुछ देने का रहेगा तब आप वापस बुक को देखेंगे, बोलेंगे अरे हम तो पढ़े हुए, बहुत फैमिलियर लगेगा टर्म्स को। तो उसके बाद जीके का आपको मंथली पढ़ना होगा, जो मंथली आता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या विजन IAS, वो सब एक ईयरली जीके। बस बैंक में बहुत ज़्यादा जीके नहीं, करंट अफेयर से आप रूबरू रहें, फाइनेंशियल टर्म्स से, और बैंकिंग अवेयरनेस ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको आपको जानना चाहिए। आगे कुछ पूछिए आप।